Good morning class 12th political science. In the previous class we started the topic challenges to bipolarity. In this video we'll continue that topic, and particularly in this topic we'll try to understand the two important words of this topic. The first word is the isolationism and the next word is the neutrality. These two words are very important from the examination point of view and to understand the topic NAM. Okay, let's start the topic. The policy of staying away from alliances should not be considered isolationism or neutrality. Whenever we talk about the NAM, so nations and the different countries, they used to understand the meaning of the NAM, that the NAM is here as a movement to make its member nations to stay away from the Cold War and to behave like a neutral nations, that they will not take side of any of the alliances and they will keep themselves aloof or aside from the alliances or from the USA and USSR. But when we talk about that, is NAM isolationism or is NAM is related with the policies or the theories or principles of the isolationism? The answer is not. And if we talk about the word neutrality, that is NAM neutral or behave like a neutral member or used to follow the policies of the neutrality, and we used to say not. Let us try to understand that why NCERT used to explain this and why NAM is not isolationism and not neutrality. Examiner or CBSE used to ask this question, that why the policy of NAM or the NAM as a movement is not related with the isolationism or neutrality. Then here is the answer. NAM is not isolationism because it means that to keep itself aloof from the world affairs, यानी कि जितना भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, NAM will not involve itself and the members of the NAM will try to stay away and try to make themselves aloof from the international or the world affairs. Okay, if you as a student want to take an example that what does isolationism mean, or is there any nation who behaved like a isolate and who behaved or followed the policy of the isolationism, and we do have one example. The name of the nation is United States of America or the US. When America had an American War of Independence in the year of 1787, they used to keep themselves aloof from the world affairs till the First World War. When you were in 9th class, so you must have studied that how USA played a very important role in First World War and how they were involved in the First World War. Isolationism sums up the foreign policy of the US from the American War of Independence in 1787 up to the beginning of the First World War, यानी कि अमेरिका इंडिपेंडेंसी की वॉर के बाद से लेकर 1914 तक, बल्कि बिल्कुल में बिगनिंग में भी नहीं आया, वो बहुत एंड में आया 1916-70s के अराउंड, यानी कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के लगभग 1-2 साल पहले. उससे बिगनिंग से वो इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है. और एज अ मेजर कैरेक्टर भी उसने रोल प्ले नहीं किया, बट हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. तो इस पूरे टाइम पीरियड में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो था. उसने वर्ल्ड अफेयर से अपने आप को बिल्कुल कट करके रखा, अलूफ करके रखा या आइसोलेट करके रखा. और अगर आपके मन में सवाल आता है कि ऐसा उसने क्यों किया, जैसे वाई USA वॉज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, बिकॉज अमेरिका डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और द वर्ल्ड अफेयर्स एंड नेशन वांट्स टू डेवलप इटसेल्फ फर्स्ट. ये सबसे बड़ा रीज़न है दैट USA wants to develop its political stability, want to develop its economy. That's why they don't want to play any kind of role in the world affairs. Okay, next word, NAM is not
neutrality. It refers principally to a policy of staying out of the war. यानी कि न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी टीम या किसी भी अलायंसेस को फेवर नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। आप किसी का भी साथ नहीं देंगे, आप न्यूट्रल रहकर काम करेंगे। और प्रिंसिपली अगर हम नाम की पॉलिसीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं, अब तक जितना भी आप लोगों ने नाम को पढ़ने या समझने की कोशिश की है, तो उससे आपको ये तो समझ में आया होगा दैट कि नाम कहीं पर भी अपने आप को कोल्ड वॉर से आइसोलेट करके नहीं रखता और कभी भी वो न्यूट्रल वाली पॉलिसीज़ को भी फॉलो नहीं करता। उसको जहाँ पर लगता है कि यूएसए सही है वो यूएसए की साइड लेता है, जहाँ पर उसे लगता है कि यूएसएसआर सही है वो यूएसएसआर की साइड लेता है। ओके, अब डिटेल में आंसर देखते हैं बेटा। कई बार सीबीएसई दोनों वर्ड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी दोनों हैं या दोनों नहीं हैं, या आजकल जो सीबीएसई है जैसे कि उसके वेटेज 6 मार्क से हटकर 4 मार्क पे 2 मार्क पर भी आती है, तो दे यूज टू आस्क द 2 मार्क क्वेश्चन इन द 4 मार्क क्वेश्चन कि क्या वो आइसोलेशनिज्म है या फिर क्या वो न्यूट्रलिटी है। तो दोनों का कंप्लीट आंसर हमारे पास लिखा हुआ है और आप चाहें तो इसे एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। नाम इज़ नॉट आइसोलेशनिज्म। बेटा जब भी आपसे स्टेटमेंट पूछी जाती है तो आप डायरेक्टली आपका फर्स्ट आंसर ही लिखा होना चाहिए नो, दैट कि नाम का मतलब आइसोलेशनिज्म नहीं है। बेटा आप है ना, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली येस या नो में क्वेश्चन आंसर जानना चाह रहा है और क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है, तो आपका जो आंसर है वो सबसे पहले येस या नो से शुरू होना चाहिए। इनका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यही हो, या तो आप उसे लास्ट में जस्टिफाई करें कि इसका मतलब आइसोलेशनिज्म नहीं है या फिर है। जो भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं इससे पहले आप या तो जस्टिफाई कर दीजिए और फिर बाद में एंड में लिख दीजिए कि इसका मतलब नॉट आइसोलेशनिज्म है, या पहले ही बता दीजिए कि नाम इज़ नॉट आइसोलेशनिज्म या नाम आइसोलेशन की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करता, और उसके बाद उसे जस्टिफाई कीजिए। यानी कि येस या नो लिखा होना बिगनिंग में या एंड में होना ज़रूरी है, और कोशिश कीजिए कि आप शुरू में लिख दें और बाद में उसको जस्टिफाई करें। और हमेशा येस या नो में आंसर आपके पास हमेशा होना चाहिए, तभी आपके आंसर को एक कंप्लीट आंसर माना जाता है। Okay, now comes to the point. Is NAM isolationism? NAM is not isolationism because NAM countries including India, याद हमें पता ही है कि इंडिया NAM का one of the founding member है, have played an acute and vibrant role in mediating the causes of peace and stability between the two कोल्ड वॉर राइवलरीज। अब ये चीज़ याद रखना कि नाम का मतलब आइसोलेशनिज्म किसी भी कॉस्ट पे नहीं है, क्योंकि नाम और नाम के मेंबर्स बीइंग इंडिया भी उसका मेंबर है, तो हमेशा वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं और हमेशा वो सब काम करने की कोशिश करेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस और कोल्ड वॉर के राइवलरीज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ ये लास्ट पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देयर स्ट्रेंथ स्टेम्ड फ्रॉम द नीड टू रिमेन यूनाइटेड, और उनका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, उनकी यूनिटी है। किनकी यूनिटी? नाम मेंबर नेशंस की यूनिटी। एंड वो कोशिश करते हैं एंड दे रिजॉल्व टू परस्यू नॉन अलाइनमेंट डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय कैंपस, यानी कि वो कैंप्स का मतलब यहाँ पर किससे है, यूएसए और यूएसएसआर से है, या उनके थ्रू बनाई गई पॉलिसीज़ या अलाइंसेस से है, जैसे कि नाटो, सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, यूएसए, यूएसएसआर। यानी कि ये सभी के सभी बार बार कोशिश करते आते हैं कि नाम के मेंबर्स को अलग कर दिया जाए, उनकी यूनिटी पर क्वेश्चंस उठाए जाएं और उन्हें नाम से अलग करके अपने कैंप्स का मेंबर बना लिया जाए, और ताकि उसकी यूनिटी ब्रेक हो और वो वीक हो जाए। वो बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं बट स्टिल उन अटेम्प्ट्स के बाद भी दे ट्राई टू यूनाइट एंड दे रिमेन यूनाइटेड। ओके, तो इससे आइसोलेशनिज्म का मतलब समझ में आ रहा है। इज नाम न्यूट्रलिटी? अगेन एज आई टोल्ड यू कि येस या नो का आंसर बिगनिंग में होना ज़्यादा सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि उसे कंप्लीट आंसर को देख सकते हैं, एंड में भी लिख सकते हैं, बिगनिंग में लिखना ज़्यादा कंफर्टेबल या फिर बिल्कुल मतलब एक कंपैरेटिवली राइट मेथड की तरह आप यूज़ कर सकते हो। नाम इज़ नॉट न्यूट्रलिटी।
न्यूट्रलिटी इज in principle a condition of not taking side between two warring parties। यहाँ पर two warring parties का मतलब कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने वाली यूएसए या यूएसएसआर या यूएसए यूएसएसआर की तरफ से कोई भी अलाइंसेस या कोई भी कंट्री जो कि यूएसए यूएसएसआर के मेंबर है, तो उनका साथ ना देना, उनकी साइड ना लेना। यूरोपियन countries pursued such policies in 18th century when Britain and France were involved in a conflict of supremacy। अब ये याद रखना, न्यूट्रल रहने का मतलब है कि आप है ना किसी की साइड नहीं लोगे। अब यूरोप में बहुत सारे नेशंस आते हैं, और अगर हम यूरोपियन नेशंस की बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे, तो फ्रांस और ब्रिटेन का तो हम सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नेशंस में से एक रहा है। फ्रांस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल नेशंस में से एक है। तो हमेशा से फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा। जब भी 18th सेंचुरी में या फिर उससे पहले या बाद में भी कभी वॉर्स हुई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें किसी की भी साइड नहीं लेनी है। एंड कंट्रीज फॉलोइंग दिस पॉलिसी डू नॉट मेक एफर्ट्स टू एंड द वॉर, यानी कि उनको वॉर से, न्यूट्रलिटी की अगर कोई पॉलिसी फॉलो करता है तो उसका वॉर से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी नेशन न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो करता है, कि हमें किसी भी तरीके से किसी की भी साइड लेना है। दोनों राइवलरीज या वॉरिंग कंट्रीज़ यूएसए यूएसएसआर या वार्सा पैक्ट या नाटो सीएटो सेंटो कुछ भी करता रहे, इट हार्डली मैटर्स टू देम। बट नाम ऐसा नहीं है, आपको ये पहले से पता है। नॉन अलाइड कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया डिड नॉट परस्यू न्यूट्रलिटी। अब है ना बेटा, आपको लग रहा होगा कि इंडिया का नाम बार बार क्यों आ रहा है। बेटा हम सब लोग इंडियंस हैं और इंडिया में रह के हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा था कि हम अपने नेशंस के बारे में या अपने नेशन के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा बताएंगे, यहाँ अपने नेशन का नाम बार बार आएगा, ठीक है। और सभी नेशंस ने ऐसा किया, पर हम लोग इंडियंस हैं इसलिए हम इंडिया को सेंटर में रख के नाम की पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और नाम की पॉलिसी के अंदर जो उसका रोल है वो भी हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। डिड नॉट परस्यू न्यूट्रलिटी, इन फैक्ट दे वर इन्वॉल्व इन एक्चुअल वॉर बाय अ वेराइटी ऑफ रीजन्स, यानी कि नाम अलग अलग जगह पर अपना इन्वॉल्वमेंट भी दिया है। जैसे कि आपको याद होगा जब कोरियन वॉर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, वहाँ पर भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिया। जब हम लोग यूएनओ के अंदर दोनों नेशंस की बात की जाती है, तब भी वहाँ पर नाम के नेशंस ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है, इंडिया ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है। दे ट्राई टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर नेशंस एज द वर्ल्ड एंड इनिशिएटिंग एफर्ट्स टू एंड वॉर, यानी कि वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं, नाम के नेशंस हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर या कोल्ड वॉर को किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, या फिर कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कभी भी कन्वर्ट ना हो जाए। नॉन अलाइनमेंट वॉज देयरफॉर परसुएंस ऑफ अ इंडिपेंडेंट अप्रोच इन वर्ल्ड अफेयर एमिंग टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, और उनका आखिरी मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर पीस को प्रमोट करना, या फिर पीस के साथ या पीस को मेंटेन करने के अपने जितने भी एफर्ट्स वो लगा सकते हैं वो एफर्ट्स को लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, आपको दोनों आंसर्स पढ़ने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि नाम जो है किसी भी तरह से ना तो वो न्यूट्रल है। एक सेकेंड प्लीज़। ओके बच्चे, अब इन दी एंड हमें इसे ज़रा समअप करते हैं। अब तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े, हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं चैलेंजेस के रिगार्डिंग, बायपोलैरिटी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक में। तो बायपोलैरिटी को चैलेंज करने के लिए हमारे पास, हमने यूएनओ के बारे में बहुत कम रोल पढ़ा है, बट स्टिल इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाम के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। तो नाम की जब भी हम बात करते हैं तो नाम एक चैलेंज रहा है बायपोलैरिटी के लिए। कैसे वो चैलेंज रहा, हम एक बार उसको देखते हैं। या नाम के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार उससे समअप कर लेते हैं। इसका फर्स्ट समिट हुआ, कहाँ हुआ, आप नाम याद कीजिए एक बार ज़रा, बेलग्रेड में। वेरी गुड, ठीक है, बेलग्रेड में इसका फर्स्ट समिट हुआ। बिगनिंग में 25 मेंबर नेशंस ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिया। उन लोगों ने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ
नाम की शुरुआत की। और नाम के अंदर एशियन नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, लैटिन अमेरिका वर्ड बुक ने यूज़ किया है, तो आप वो वर्ड भी ध्यान रखेंगे। इन नेशंस ने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है। एंड में जब हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं नाम के रिगार्डिंग, तो 2 वर्ड यूज़ हुए हैं। एक वर्ड यूज़ हुआ है न्यूट्रलिटी और दूसरा वर्ड हुआ है आइसोलेशनिज्म। ये दोनों वर्ड से हमें ये पता चलता है कि नाम ना तो बाइपोलैरिटी से अलग रहकर काम कर रहा है, ना ही वो बाइपोलैरिटी के अकॉर्डिंगली न्यूट्रल बिहेवियर रखता है। वो यूएसए और यूएसएसआर और उनकी अलाइंसेस जैसे कि नाटो, सेंटो, सिएटो, वार्सा पैक्ट, ठीक है, तो इन सभी के साथ वो ध्यान रखता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा अलाइंसेस किस तरीके से काम कर रहा है। इसलिए वो आइसोलेट नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है, वो हर किसी के एक्शंस पर ध्यान रख रहा है, किसी की साइड नहीं ले रहा, बट फिर भी जो सही है वॉर के टाइम पीरियड पे सिचुएशन को देखते हुए उसका वो कहीं ना कहीं फेवर करता है, ठीक है। पर फेवर करने का मतलब नाम से ये नहीं होगा कि नाम ने उस अलाइंसेस या फिर उस टीम को ज्वाइन कर लिया है। ये आप हमेशा याद रखेंगे प्लीज़।